can make nice notes of it. If someone can make nice notes of it, so that yes, Shruti will make nice notes and we can make handouts of it. Okay, so those who are making now notes, we need to have in the week little bit of meetings so that make a nice hand notes. Okay, so and these recordings, so Tarun, you upload it in our Dasosmi family YouTube. Okay. Okay. Okay, Okay. so now I will say some things. Anyone has Mac or everyone has Windows? Everyone has Windows. Hare Krishna. Say you all Yes, Prabhu. switch off your videos now, but be interactive so that I know that you are with us. Okay. So everyone uses Windows or anyone using Mac here? Windows, Prabhuji. Okay, very good, very good. Okay, so Tarun, these are certain things which you need to find out so that because we'll have to get accordingly. So, everyone is able to see my screen? Yes, Prabhuji. Okay. Yes, sir. Hare Krishna. Bhisma, you are ready? Can you share your screen also? Yes, Prabhuji, sure. Yeah. Okay, so the first thing we need to learn, this is a little bit of theory first, and the next 15 minutes we are going to learn, and I am going to ask all of you, kya aapne samjha? How many of you are comfortable with English and how many of you are really need Hindi? Please, those Hindi people, please raise hands, so I'll make it in Hindi. Okay, everyone is comfortable in English? Okay, very good. Okay, so this is the first thing we need to learn and understand. You see that this is what I'm highlighting it in red. Vector-based graphic software versus image-based graphic software. Okay, so this is something which is little important to understand. What is a vector-based software versus image-based software? You see, there are two things that are available in market. There is something called a Adobe Photoshop, okay, and there is something called a Adobe Illustrator, okay. So these are the two softwares which we will be training both of all of you. Now, Adobe Photoshop is a image-based software. And Illustrator is a vector-based software. Now, what's the difference? There is a basic difference between how the things are stored. Okay, Bhishma, can you share your screen? Now I'll show you. So through your screen, Bhishma. Oh, you are not there. You are not sharing your screen. Yes, bro. I just shared my screen, bro. Yes. Okay. Very good. So okay. So now this is Illustrator. Open Photoshop also. So Bhishma will be showing different things, and which I'll be telling. Bhishma will show so that you understand what is a what is a image based software, and what is a okay. Now Bhishma, open a image, any image that is stored in your laptop. Yeah, yeah. Oh, this is one image, single image, Bhishma, not a poster. Sure, bro. Okay, wedding image chalega, no problem. Yeah, okay. Okay, so this is Nitai Gauranga's picture. Now, this picture, how it is stored in the things. So this picture, if you enlarge the picture, Bisma, to 4,000, more. You see now. You see now. You are seeing the picture now. So the picture is basically one square that you are seeing is called a pixel.
Okay, I repeat, the square that you are seeing in a picture is basically a pixel. Pixel. So now each pixel is stored in the computer as a bit set. So ये जो पिक्सल है उसका कलर क्या है, वो is stored. So oh, don't do like that. Don't do like that. Whenever I'll tell anything, you do. Okay, so this pixel is stored in the computer. So now how many pixels are there? Are you able to see in a picture? Reduce now. How many pixels? These are unlimited pixels. Okay, you're able to see. Yeah. Now you go to Bhisma and select the image and go to size and show how many pixels are there. Go to image. No. Oh no. So give me remote control, Bhisma. Yes, sure, bro. Okay. Yeah, okay. So now this image, if I select and then image size, if I go, you see enlarge Bhisma, this it's not visible. No, enlarge. No, not the image, the thing that is being the dialog box. Oh, this cannot be enlarged, bro. Okay, no, it can be enlarged. You see, it is in Bhisma. Okay, so I don't know how many of you are able to see this. There is a resolution written 240 pixels per inches. You're able to see? So that means there are 21 inches in the width of this picture. There is height 16 inches. And in every inch, there are 240 pixels. You're able to understand? Now, if I select this in pixel format, there are 5,000 pixels in the width and there are 3,888 pixels in the height. So total this many pixels are there. Okay. So that means how many of you have heard about 1920 into 1080 something we will call na 1080 HD video. How many of you have heard this word 1080 HD video, 720 video? ये सब जो है तो ये क्या है, ये बेसिकली पिक्सल है. तो मतलब 1080 मतलब 1920 into 1080 मतलब 1920 and 1080. आपको समझ में आ रहा है? विड्थ में दिखा दो भीष्मा 1920 and 18 भीष्मा. So Yes, bro. Yeah. So this is in the width it is 1920 pixels and in the height it is इसमें कुछ एक डाल दो कोई बॉक्स डाल दो कुछ तो एंड फिर दिखा देंगे कैसे पिक्सल पूरा पूरा भर के कलर कर लो. कलर कर लो. Yes, bro. Yes, 1 minute. तो नाउ मैंने ये इसको रेड पूरा कर दिया. नाउ इसको बड़ा करो भीष्मा, पूरा एनलार्ज करके पिक्सल फॉर्म में दिखा दो. ओके. सो नाउ ये पिक्सल ऐसे ऐसे रनिंग कर रहा है तो इसको पूरा अगर विड्थ में गिनेंगे वो 1920 होगा और ऐसे गिनेंगे तो 1080 होगा. अभी समझ में आ गया? टेबल समझते हैं? टेबल होता है ना, रोज एंड कॉलम्स. तो इसमें बेसिकली 1920 by 1080 मतलब 1920 आपका कॉलम्स है एंड 1080 रोज है. कितनों को समझ में आया ये? समझ में ये नहीं आया तो बोलिए, तुरंत बोलिए कि प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, आगे मत बढ़िए. ठीक है ना? इतना नहीं समझेंगे तो जैसे जैसे समझते जाएंगे हम करेंगे. ठीक है. सो ये पिक्सल सेव करता है. ना अगर उसको और एनलार्ज करते जाएंगे वो पिक्चर होता है फट जाता है. वो पिक्चर खोलो अगेन निताई गौरंगा का.
कोई छोटा पिक्चर खोलो, मतलब ये तो बहुत इसका रेजोल्यूशन हाई है, कोई ऐसा पिक्चर खोलो जो छोटा पिक्चर हो, जिससे फटता कैसा है समझ में आएगा। लो रेजोल्यूशन का पिक्चर खोलो, हाँ इसको जगन्नाथ जी को खोलो, हाँ खोलो फोटोशॉप में, ठीक है इसमें ही खोलो, फोटोशॉप में खोलो, यस सर, फोटोशॉप में खोल रहा हूँ। ये तो फोटोशॉप नहीं है, फोटोशॉप में खोलो। सो नाउ यू सी, मैं दिखाऊंगा कि पिक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या समस्या होता है। जैसे कि ये लो रेजोल्यूशन पिक्चर है तो ये हाँ या सो देखिए, अभी ये लो रेजोल्यूशन पिक्चर है, मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूं, इसको पिक्चर को साइज को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, ऐसे बढ़ा दिए, क्या हो गया, बढ़ाओ, हाँ देखो अभी पिक्सेलेट हो गया। इसको मैं अगर बड़ा साइज में प्रिंट करूंगा, ये छोटा पिक्चर है, इसको अगर मैं बहुत बड़ा साइज का प्रिंट करूंगा, ये ऐसे दिखेगा, ये पिक्सल पिक्सल दिखेगा, ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, फटा फटा हुआ बोलते हैं ना, फटा हुआ पिक्चर आ गया। तो फटा हुआ पिक्चर मतलब क्या है, साइज बहुत बड़ा है पर पिक्सेल्स बहुत कम है उतने में। समझ में आ रहा है आपको? नाउ ये है इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर। इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज ए पिक्सल, एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज ए पिक्सल। पिक्सल का क्या कलर है, राइट? यू इंक्रीज इन सो द निताय गौरंगा पिक्चर, उसको फटाओ, बड़ा करो, बड़ा करो, हाँ अब देखिए, हाँ गो टू, ये पूरा तो ब्लू है, गो टू द रेड साइड, हाँ हाँ देखिए, देखिए अलग अलग पिक्सल का अलग अलग कलर है, आपको समझ में आ रहा है अभी कैसे? ये बेसिकली इट इज जस्ट लाइक ए मार्बल टाइल, हर टाइल का एक कलर है। एंड जब वो बहुत छोटा हो जाता है, हमारा आंख उसको क्या करता है, एक पूरा पिक्चर की तरह दिखता है, बट एक्चुअली बहुत जब बड़ा कर देंगे, अल्टीमेटली जो स्टोर्ड हुआ है कंप्यूटर में जाके, इट इज स्टोर्ड इन ए मार्बल टाइल फॉर्मेट ओनली। समझ में आ रहा है? दिस इज इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर। इमेज जो होता है ऐसे स्टोर होता है, पिक्सल फॉर्म में स्टोर होता है ना। समस्या क्या है पिक्सल फॉर्म में स्टोर होने से? समस्या यह है कि हम इमेज को बहुत खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं। इमेज अगर ये साइज का है, उसका अगर प्रिंटिंग करेंगे तो अच्छा दिखेगा। इमेज छोटा है और उसको हम बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, इमेज प्रिंट करने के बाद फट जाएगा। ये चीज समझ में आया सबको? प्लीज टेल यस। ओके टेल यस, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर। नाउ अभी हम इलस्ट्रेटर में, जैसे रेड रेड दिखा दो, रेड दिखा दो, रेड 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 ऑब्जेक्ट जो बनाया था फोटोशॉप में, या अभी देखिए रेड ऑब्जेक्ट जो बनाया उसमें भी ऐसे पिक्सल पिक्सल का ब्लॉक है, करेक्ट है कि नहीं? ना अभी हम इलस्ट्रेटर में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेड कलर का, बनाओ। वही 1920 लो सब कुछ, वेब 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 वेब। मेक एन ऑब्जेक्ट, और आ गया जूम में। ओके, सो नाउ मैं इलस्ट्रेटर में ये एक सेम, ये दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, ये भी रेड है वो भी रेड है। अभी इलस्ट्रेटर को एनलार्ज करो, करो, इससे ज्यादा नहीं होगा प्रभु जी। हाँ हाँ। तो ये जो है, इसमें पिक्सल की तरह स्टोर नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है। तो आप उसको कितना भी खींचिए, कितना भी खींचिए, कितना भी खींचिए, वो फटेगा नहीं। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। वेक्टर मतलब इट्स अ ऑब्जेक्ट, एंड वो कैसे स्टोर्ड होता है, उसका कोऑर्डिनेट स्टोर होता है। ओके, हम थोड़ा आगे जाके जब पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि कैसे इलस्ट्रेटर सेव करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट स्टोर होता है। तो इसीलिए, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट स्टोर करता है, आप उस वेक्टर को कितना भी खींच सकते हैं अनलिमिटेड तरीके से। इतना छोटा वेक्टर को आप खींच के बहुत बड़ा फ्लेक्स बना सकते
है, एंड वो फटेगा नहीं और उसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड वेक्टर बेस्ड वेक्टर। सो इमेज और वेक्टर में अंतर यह है, इमेज पिक्सल से बनता है, वेक्टर एक ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत इनफाइनाइटली रिसाइज किया जा सकता है। इमेज पिक्सल से बनता है, वेक्टर पिक्सल से नहीं बनता है। वेक्टर कैसे स्टोर होता है? वेक्टर कोऑर्डिनेट से स्टोर होता है। छोटा करो इस रेड ऑब्जेक्ट को, आर्टबोर्ड को छोटा करो, मिनिमाइज, बीच में मिनिमाइज, हाँ यस। सो और ये आर्टबोर्ड व्हाइट दिखाओ, छोटा रेड को छोटा करो, या। सो नाउ ये जो रेड ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पिक्सल नहीं है, इसके अंदर पिक्सल नहीं है। इसमें जो आप देख रहे हैं, चार पांच तो कॉर्नर देख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, तो इसका जो कोऑर्डिनेट से स्टोर होता है, it stores the coordinates as a byte or a bit that was storing so many pixels. now ये सेम ऑब्जेक्ट में कितना स्टोर हो रहा है? एक दो तीन चार पांच छ, दो चार छ, आठ, आठ इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। उसमें कितना इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा था? 1920 इंटू 1080। सो इधर एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आठ इंफॉर्मेशन स्टोर करके आपका ऑब्जेक्ट बन गया। उधर एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 1920 इंटू 1080 स्टोर करना पड़ता है। तो इसीलिए वेक्टर बेस्ड जो वेक्टर होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है और इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वेक्टर में स्टोरिंग, आप इस वेक्टर को अगर स्टोर करना है, आप वेक्टर को समझना है, तो क्या है, आप अगर ये आठ कोऑर्डिनेट अगर जान लेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल बन गया ना। रेक्टेंगल बनने के लिए तो चार चीज चाहिए, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, बस बन गया। तो आपको चार चीज अगर स्टोर हो गया तो आपका हो गया, रेक्टेंगल बन गया। पर अगर वही चीज इमेज में दिखना है तो आपको हर पिक्सल का इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब 1920 इंटू 1080 स्टोर करना है। कितनों को ये चीज समझ में आया? लास्ट जो चीज बोला, और क्या समझ में आया बताइए। यस तरुण, क्या समझ में आया? यस प्रभु। तो फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए पिक्सल से डिफाइन होती है। तो उसमें लेंथ में कुछ पिक्सल होते हैं, ब्रेड्थ में कुछ पिक्सल होते हैं, हाइट में। तो लेंथ जितने नंबर ऑफ पिक्सल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतने बिट्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। बल्कि इसमें इलस्ट्रेटर के अंदर सिर्फ पॉइंट्स जो चारों तरफ पॉइंट्स रहेंगे, दे ऑल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट, तो वो लिमिटेड कम पॉइंट्स में डिफाइन हो जाता है कोई। तो इसीलिए फोटोशॉप की जो इमेज होता है, जो जनरेट करता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और इलस्ट्रेटर का जो फाइल होता है वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज बहुत कम इंफॉर्मेशन में वो फाइल स्टोर हो जाता है। सो इसीलिए जनरली आजकल सब कुछ वेक्टर में ही काम होता है, बिकॉज फाइल छोटा होता है, उसको आसानी से खुल जाता है, उसको फाइल हैंडलिंग बहुत सुविधा है, आप मेल में भेज देंगे। 1 MB का इलस्ट्रेटर फाइल हुआ, वही चीज फोटोशॉप में आपका 1 GB का भी हो सकता है। सो इतना डिफरेंस होता है। तो फाइल हैंडलिंग बिकम्स वेरी इजी इन यूजिंग वेक्टर बेस्ड। तो इसीलिए हम पहले आपको इलस्ट्रेटर सिखाएंगे जो वेक्टर बेस्ड है, उसके बाद हम फोटोशॉप भी जो जो जरूरत है उसको सिखाएंगे। ओके, फोटोशॉप का भी काम है, कैसे क्या क्या चीज में काम हम करेंगे फोटोशॉप, वो उस समय देखेंगे जब फोटोशॉप सीखेंगे। सो दिस इज अबाउट vector based software and image based software. I will repeat again, image based softwares, and image is stored as a pixel and vector is stored as a coordinate. And for defining anything, lot of pixels have to be stored, and that's why pixel 1920 into 1080 वो जो pixels है, that's why image has a higher size, file size, and vector has a lower file size. इमेज अगर आप खींचेंगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा, फट जाएगा, प्रिंट करने के बाद अच्छा नहीं दिखेगा। वेक्टर को आप कितना भी बड़ा करिए तो वो सुंदर दिखेगा। ओके भीष्मा, वो करो, एक कृष्ण का वेक्टर फ्री पिक से डाउनलोड करो, या कुछ भी वेक्टर डाउनलोड करो।
एंड उस वेक्टर को इमेज की तरह पहले स्टोर करो, फिर दोनों को एनलार्ज करके एक फाइनल हम वो दिखा देते हैं. वी विल शो देम द नाउ वी विल शो यू एन एक्चुअल वेक्टर. ओके, कैसे दिखता है आपको ये वेक्टर, कैसे दिखता है कृष्णा वेक्टर या ओके. ओके. ओके, दिस मोर पंख. ओके, नहीं, इट्स प्रीमियम You है, can open this प्रीमियम one, है ये. Prabhuji. ओके, ओपन दैट, डाउनलोड इट. रिड्यूस द साइज, आर्टबोर्ड एनलार्ज्ड है. या ओके. सो नाउ दिस इज कृष्णा का एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वो नहीं है, ये इमेज नहीं है. नाउ इसको एनलार्ज करो. कृष्णा देख रहे हैं? यू आर एबल टू सी देर इज नो, देर आर ऑल कोऑर्डिनेट्स, देर आर ऑल पॉइंट्स. समझ में आ रहा है? देख रहे हैं? ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, इतना एनलार्ज कर दिया. इसको छोटा करो, तो आप इसको कितना भी खींचेंगे ये ऐसे ही रहेगा. और कितना भी बड़ा इसको प्रिंट कर सकते हैं आप. ऑडिटोरियम के पीछे भी बड़ा पूरा पीछे करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, और इतना छोटा कार्ड भी दे सकते हैं इसमें. ठीक है, कृष्ण जो लिखा हुआ है इसको बड़ा करो, टेक्स्ट को बड़ा करो. टेक्स्ट की जगह, हाँ देखिए, देखिए टेक्स्ट देखिए, और बड़े बड़ा कीजिए. देख रहे हैं? इतना बड़ा हो गया एस, फिर भी फटा नहीं. नाउ इसको क्या करेंगे हम, इसको इमेज की तरह सेव करेंगे और फोटोशॉप में खोलेंगे, देखेंगे आप. इसी को फिर बड़ा करेंगे एज इमेज. इसको सेव करो इमेज Yes, की Prabhuji. फॉर्म में. नहीं नहीं, ये वेक्टर को, हाँ है तो हाँ, इसको इसको खोलो. नाउ इसी वेक्टर का हम इमेज देखेंगे, और इमेज को बड़ा करने की कोशिश करेंगे. आप देखेंगे कैसे पिक्सेलेट हो जा रहा है. ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो ना. Yes. या अभी ये एक इमेज है, हम जो फोटोशॉप में खोले, सेम चीज का दिख तो रहा है, सेम करेक्ट. उसमें कुछ, इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं. इलस्ट्रेटर का खोलो, देखो इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ अंतर तो सेम ही है. बट इमेज, जब इमेज में खोलो, इमेज फोटोशॉप खोलो, अभी इसको बड़ा करो. जैसे उस कृष्ण के टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह देखो, खोलो खोलो खोलो, और बड़ा करो. अब देखिए, हाँ ऊपर ऊपर जाओ, देख रहे हैं? ये पिक्सेलेट होने लग गया है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? पर वो पिक्सेलेट नहीं होगा. और फिर इसको इतना बड़ा करके प्रिंट करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा प्रिंट में, स्क्वायर 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 दिखेगा. बट उसको कितना भी बड़ा करके प्रिंट करेंगे वो स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिखेगा. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेक्टर एंड इमेज? सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन वी आर एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेक्टर वर्सेस इमेज. ओके, नेक्स्ट. Anyone has any doubt on vector and image? We'll give you 2 minutes. Anyone has any doubt? तो फोटोशॉप का Okay. क्या यूज है, थोड़ा बताएंगे ब्रीफली? Okay. Yes. So Photoshop हमको see vector, though it has very good uses that हम बहुत कुछ बना सकते हैं, पर वेक्टर में कृष्ण अभी जो देख रहे हैं और इमेज में जो कृष्ण दिखते हैं वो अलग दिखता है. इमेज में क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहता है और इमेज ज्यादा सुंदर दिखता है. वेक्टर इज बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है. वेक्टर में वो इमेज की, जैसे आपका एक, अभी मैं वेक्टर बनाऊंगा तो आप एक वेक्टर की तरह दिखेंगे, मतलब थोड़ा सा कार्टून की तरह. वेक्टर इज बेसिकली लुक्स लाइक लिटिल कार्टूनिस्ट, कार्टून. तरुण का मैं एक वेक्टर बनाऊंगा तो इट लुक्स लाइक ए कार्टून. बट तरुण का जो पिक्चर मैं लूंगा, आईफोन से अगर मैं पिक्चर लूंगा तरुण का, that picture looks more real because so many pixels are there and it has gradients and everything. तो उसके वजह से
इमेजेस आर, जैसे हमने फोटो लिया, तरुण का फोटो लिया, वेडिंग सूट लिया, वो सब किया, तो उसको अगर हम थोड़ा सा उस फोटो को थोड़ा एडिट करना है, फोटो में थोड़ा लाइट डालना है, कोई माता जी थोड़ा सांवली है, उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा पेयर कलर डालना है, राइट? आई वॉज टेकिंग वन इंटरव्यू, इनिशिएशन इंटरव्यू, वन लेडी हैड कम फॉर इंटरव्यू एंड दैट पिक्चर लगा था उसका एंड दैट पिक्चर वाज सो नाइस एंड द लेडी वाज, वो पूरा फोटोशॉप में एडिट होके आप पूरा ऐसे, आपका आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं हूं क्या। जैसे तरुण का पिक्चर लेके फोटोशॉप में हम ऐसे हैंडसम बना सकते हैं कि तरुण को पता नहीं चलेगा, प्रभु जी काश में ऐसा होता, राइट? सो ये सब चीजें फोटोशॉप में हो सकता है, जो हम बाद में सीखेंगे। ऐसे नहीं कि फोटोशॉप जरूरत नहीं है, इमेज जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इमेज ही खींचेंगे, है कि नहीं? तरुण का इमेज रहेगा, सो उस इमेज का भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो इमेज के ऊपर जो भी काम फोटोशॉप में होता है, वेक्टर के ऊपर जो भी काम इलस्ट्रेटर में होता है, ठीक है? जैसे हम निताई गौरांग का कैलेंडर बनाएंगे, अल्टीमेटली निताई गौरांग का जो पिक्चर है वो इमेज है, उस इमेज को लेके हम इलस्ट्रेटर में डालेंगे और फिर काम करेंगे, ठीक है? तो इलस्ट्रेटर में जब वो इमेज डाला जाएगा, बाकी सब वेक्टर रहेगा, वो इमेज इमेज रहेगा। और क्यों ऐसा करेंगे हम, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको ज्ञान मिलेगा। अभी हम बस आज पहला का टॉपिक था इमेज वर्सेस वेक्टर डिफरेंस। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ओके, विल गो अहेड। नेक्स्ट इज आरजीबी वर्सेस सीएमवाईके कलर स्केल। ओके, सो आरजीबी वर्सेस CMYK. Okay, so okay, so Bhisma, open Photoshop, select Yes, the sir. picture and open the color. What I have to do, bro? Color इसका कलर, हाँ, अच्छा, या देखिए। सो ये बड़ा नहीं हो रहा है, छोट, आपको सबको दिख रहा है? right here is the CMYK. Okay. So what is CMYK and what is, well, I will also now share my screen so that becomes a little easier where to share my screen. Okay. You see, हम RGB को प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू को प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू का कुछ मिश्रण से हम कुछ भी कलर्स बना सकते हैं। ओके, रेड ग्रीन ब्लू मिला के हम कुछ भी कलर बना सकते हैं। बिस्मा, ओपन फोटो, फोटोशॉप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाओ जिसका कलर अलग अलग है। You will be able to see my screen also and Bisma's screen also. You are not able to see. There is a ऊपर मीटिंग, लैपटॉप में एक मीटिंग, माई श्रीनिताई दास स्क्रीन एंड भीष्मा स्क्रीन, वो आता है, आप टैब आता है। How many of you are able to see now Bhisma screen? Okay, I will add Bhisma screen also to Spotlight so that how to add this screen to Spotlight नहीं होता है। Everyone is able to, सबको सब दिखाई दे रहा है? ओके, रेड ग्रीन ब्लू करो मत बिस्मा, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू करो और कुछ और कलर करो, और तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करो, कुछ और कलर डालो। Yes, bro. Yeah. या
नहीं रेड नहीं कुछ और। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ। ओके ठीक है, ये कलर डालो, हाँ। हाँ पिंक डालो, पिंक, हाँ पिंक डालो, हाँ। वायलेट डालो, हाँ पिंक डालो। फिर वायलेट डालो, हाँ करेक्ट। ओके। सो अभी देखिए ऊपर हमने रेड ग्रीन ब्लू लगाया, ठीक है। नाउ रेड ग्रीन ब्लू का हम देखेंगे, कलर कलर कोड देखेंगे, इसको बोलते हैं कलर कोड। ओके, क्या बोलते हैं? कलर कोड। आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा इसका कलर कोड क्या है, तो तुरंत आप क्या बोलेंगे? आर इतना, जी इतना, बी इतना। ओके, गो टू रेड। तो रेड में देखिए कलर कोड क्या है। इसको, ये प्योर रेड नहीं है, अरे बोल प्योर रेड नहीं है। ग्रीन को 0 करो, ग्रीन, हाँ। तो अभी देखिए रेड 255, G0, B0, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया कलर कोड। ग्रीन में देखिए वैसे रहेगा, G255, इसको प्योर। हरी बोल, हाँ क्लियर बोलो। स्किन रहा, हाँ क्या? क्लियर दिख नहीं रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है क्लियर? प्योर करो ना हरी बोल, ग्रीन को प्योर करो। क्या नहीं दिख रहा है? वीडियो तो नहीं बीच दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? भीष्म का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी दिख ऊपर रहा एक है? ऑप्शन है, वो आपको टच करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है भीष्म का? मैं अपना शेयर बंद कर देता हूँ, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते बिजनेस। दिख हाँ। रहा है। हम्म, मैं अपना वो भी वीडियो भी वो कर देता हूँ, कहाँ गया? रिमूव स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। भीष्म कौन से में तुम शेयर कर रहा है? दोनों ही भीष्म विश्वास है, ठीक है जो भी है। ओके। हाँ गो टू रेड, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू को दिखा, हाँ अभी देखिए। अभी इसका कलर कलर स्कीम देखिए, रेड 0 है इसमें, ग्रीन 255 है, ब्लू 0 है, और ये ग्रीन कलर है। गो टू ब्लू। तो ब्लू में प्योर ब्लू करो। रेड को 0 कर दो, हाँ। सो ये है आपका RGB, ये 3 प्राइमरी कलर है। ओके। तो अगर ये 3 प्राइमरी कलर है, इसमें R0, G0, B255 होने से ब्लू आ जाएगा, और ग्रीन को पूरा कर देंगे और आर को कर देंगे तो ग्रीन आ जाएगा, रेड आ जाएगा। पर अभी हम नीचे का देखेंगे, नीचे जो वायलेट है, हाँ, इसका देखिए कलर स्कीम क्या है। R107, G55 एंड B147। समझ में आ रहा है? मतलब ये कलर कैसे बना है, ये जो वायोलेट कलर कैसे बना है। रेड अगर 107% डालेंगे, ग्रीन अगर 55 डालेंगे यूनिट्स, और ब्लू अगर 147 यूनिट्स डालेंगे, ये सब 255 में होता है, 255। ओके। सो उसमें रेड अगर 147 होगा, ग्रीन 55 होगा, नहीं सॉरी, रेड 107, ग्रीन 55 एंड ब्लू 147 में ये कलर बनेगा। तो इसको बोलते हैं RGB कोड। ओके। सिमिलरली पिंक का दिखा दो, पिंक का भी एक RGB कोड होता है, 210, 51, 118। और इसका भी एक रहेगा, 103, 160, 186। ओके। सो दिस इज कॉल्ड RGB कोड, एंड ये RGB को चेंज करेंगे, चेंज करो, ब्लू को पकड़ के RGB को चेंज करो तो वो सब चेंज होते जाएगा। वो कलर देखेंगे, इसमें कुछ अंतर करो, 50 कर दो रेड, देखिए वो चेंज हो गया। ओके करो, चेंज समझ में नहीं आ रहा बिकॉज द चेंज इज नॉट ऐसा चेंज। Before it was light color, now it became a little bit deep blue. हाँ ठीक है जो भी है whatever, और ऐसे चेंज करो कि समझ में आए। Oh, मे बी ग्रीन,
हाँ, देखिए समझ में आ रहा कैसे हो गया अभी। जैसे ही आप आरजीबी अलग अलग करते रहेंगे, ये आपका कलर बदलता रहेगा। ओके, सो बेसिकली आरजीबी का मिश्रण से ही अलग अलग कलर बनता है। ओके, ठीक है। ना फिर CMYK क्या है? तो CMYK क्या है? तो अभी तो हम ये कंप्यूटर में देख रहे हैं, ठीक है। तो नाउ मान लीजिए ये जो पेज है, ये पेज जो है आर्ट बोर्ड है, मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा प्रिंटर के पास। ओके, सो प्रिंटर में जो सिस्टम है वो प्रिंट जो होता है, प्रिंट और एक फॉर्मेट फॉलो करता है, उसको बोलते हैं CMYK। ऐसे क्यों है? ओके, ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए प्रिंटिंग हर समय अभी जनरली लोग क्या प्रिंटिंग करते हैं? जनरल जब प्रिंटिंग होता है तो क्या होता है? व्हाट इज द जनरल कलर दैट इज प्रिंटेड? ब्लैक एंड व्हाइट। परफेक्ट, जनरली ब्लैक में ही प्रिंट होता है, करेक्ट। मोस्टली ब्लैक में प्रिंट होता है। नाउ अगर RGB से ब्लैक निकलेगा तो क्या होगा? इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज R भी खा रहा है, G भी खा रहा है, B भी खा रहा है, फिर ब्लैक हो रहा है। आप समझने कीजिए, प्रिंटिंग इज अ बिजनेस। ओके, क्योंकि आपका इंक जाएगा। पर मैं अगर RGB से ब्लैक निकालूंगा तो R का कुछ दिखाओ, RGB से ब्लैक निकालो हरिवोल। आई थिंक सब 255 होगा, सब 255 होगा ना? हाँ, सब सब 00 होगा, करेक्ट। हाँ, तो ये है ब्लैक, ठीक है। तो नाउ ये RGB से मैं ब्लैक निकालूंगा तो प्रिंटिंग क्या होता है? आर भी खाता है, वो तो ब्लैक को थोड़ा सा इम्प्योर करो। हाँ, ओके, एंड व्हाइट करो, व्हाइट। एक और एक में व्हाइट करो। हाँ, तो नाउ ये व्हाइट का दिखाओ, 255 255 255। व्हाइट कैसे बनता है? जब R फुल हो जाता है, G फुल हो जाता है, B फुल हो जाता है, तो ऐसे R बनता है ना। आप मान लीजिए मैं टी शर्ट प्रिंट कर रहा हूं, टी शर्ट में सब व्हाइट है और एक ब्लैक है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं RGB प्रिंटर यूज करूंगा तो क्या है? ब्लैक पोर्शन में क्या है देखो, ब्लैक मतलब 000, वो कुछ प्रिंट ही नहीं, इंक ही नहीं निकलेगा। आपको कैसे समझाऊं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर RGB व्हाइट पोर्शन में RGB सब निकल जाएगा इंक, और वो इंक ज्यादा स्पेंड हो जाता है इफ वी यूज RGB स्टाइल इन प्रिंटिंग। कितनों को समझ में आया कि कैसे RGB स्टाइल में इंक ज्यादा खर्चा हो जाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास प्रिंटर है, उसका जो कलर का जो क्वालिटी होता है वो दिखता है। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ प्रिंटर का जो कलर डालते वो? आपका कौन सा प्रिंटर है? RGB प्रिंटर है, CMYK है? हरे कृष्णा। के दिखाती हूँ। ओके, अभी मत दिखाइए, प्रभु जी, क्लास हरे के कृष्णा बाद। प्रभु जी, मुझे हाँ, यस। समझ नहीं आया, आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ, ये समझ में नहीं आया तो क्यों? ये थोड़ा बिजनेस है इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्रिंटर कैसे करेगा? आर काली निकालेगा, जी काली निकालेगा, बी काली निकालेगा, उसको मिक्स करेगा, मिक्स करके रंग निकालेगा, करेक्ट। इसी से तो प्रिंटिंग होगा ना। RGB से तीन, प्रिंटर में क्या होता है? R रहता है, G रहता है, B रहता है। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्टवेयर से उसको मिलाता है, फिर एक कलर निकाल के उसको छापता है। समझ में आया? इतना कितने को समझ में आया? हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। यस प्रभु। तरुण, आपको समझ में आया? यस प्रभु। क्या समझ में आया? अ, अगर मैं कोई भी कलर प्रिंट करना है तो उसमें तीनों कलर की जरूरत पड़ेगी। आर कुछ पोर्शन, जी कुछ पोर्शन, बी कुछ पोर्शन, उनका अलग अलग यस, मिक्सचर से ही पर्टिकुलर कलर हाँ, निकलेगा।
मान लीजिए मैं मेरा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट का पेज प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का अगर मैं पेज प्रिंट करूंगा, तो उसको अगर मैं आरजीबी प्रिंटर में डालूंगा, तो व्हाइट कैसे बन रहा है, व्हाइट कैसे बन रहा है? 255 से 250 हाँ, मतलब व्हाइट में कुछ एक्चुअली जरूरत नहीं है। व्हाइट क्या प्रिंट करना है, पेपर ही तो व्हाइट है, उसके ऊपर ये एक और एक परत जमा देगा अननेसेसरीली। मेरा व्हाइट पेपर ऑलरेडी है, उसके ऊपर मैं केवल मेरा टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, ब्लैक है, मेरा नाम प्रिंट करना चाहता हूँ श्रीनिताय दास। मैं एक बड़ा पेपर व्हाइट पेपर में नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, उसको आरजीबी प्रिंटर में घुसाऊंगा तो पूरा बड़ा पेपर में वो व्हाइट पहले प्रिंट कर देगा, ऑलरेडी व्हाइट है, और फिर वो ब्लैक प्रिंट करेगा, क्योंकि व्हाइट में 255 होके बहुत इंक खर्चा हो जाता है। तो ये आरजीबी स्कीम जो है, क्योंकि जनरली प्रिंटिंग में बहुत ब्लैक यूज होता है और व्हाइट यूज होता है, और क्योंकि ब्लैक और व्हाइट में पूरा स्पेक्ट्रम से ब्लैक इज 000, उसको प्रिंटिंग कैसे होगा 000, क्या प्रिंटिंग होगा बताइए? अभी 000 मतलब इंक ही नहीं निकलेगा, तो ब्लैक कैसे प्रिंट होगा बताइए? अभी देखिए ब्लैक ब्लैक का देखिए, R0 G0 B0, तब ब्लैक हो जाता है। अब प्रिंटिंग में जब हम डालेंगे तो R0 G0 B0 मतलब क्या है बताइए? इंक तो जीरो मतलब क्या है, वो इंक छोड़ेगा ही नहीं, और इंक जब छोड़ेगा नहीं तो प्रिंट प्रिंट क्या होगा बताइए? ये चीज आपको अगर समझ में आ गया मतलब आप समझ गए। ये भौरा को बाहर करो, आवाज ठीक है छोड़ो। हाँ, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? बेसिकली थोड़ा सा प्रभु कलर, अगर हमें ब्लैक कलर आरजीबी स्कीम से प्रिंट करना है तो हमें पेपर ही ब्लैक चाहिए। हाँ, पेपर नहीं, पेपर ब्लैक नहीं चाहिए, वो ब्लैक निकलेगा ही नहीं, बिकॉज R0 G0 B0, ब्लैक मतलब R0 G0 B0, तो वो कंप्यूटर कैसे निकालेगा? वो R0 मतलब क्या है, रेड मत निकालो। हम्म। जीरो मतलब क्या है, जी मत निकालो। B0 मतलब क्या है, बी मत निकालो। तो ब्लैक प्रिंट कैसे होगा फिर? कलर निकला ही नहीं। ब्लैक नहीं प्रिंट होगा यस। ये समझ में आया सबको? प्रगति आपको ये अभी समझ में आया? हाँ प्रभु जी आ गया। आरजीबी का एक पर्टिकुलर मिश्रण से कलर बन रहा है, पर जी। अगर मेरे को ब्लैक प्रिंट करना है, आर बिल्कुल मत डालो, जी बिल्कुल मत डालो, और बी बिल्कुल मत डालो, फिर ब्लैक हो जाएगा। फिर प्रिंट क्या हुआ? फिर कुछ नहीं प्रिंट हुआ, निकला ही नहीं कलर, तो क्या प्रिंट होगा? तो आरजीबी स्कीम से ब्लैक प्रिंट नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए हम CMYK के स्कीम चालू हुआ फॉर प्रिंटिंग पर्पस। CMYK मतलब K इज द ब्लैक, ब्लैक एक सेपरेट रखते हैं, और CMYK इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ RGB, जिससे बाकी कलर्स बनता है। दिखाइए CMYK। अभी सेम चीज का हम CMYK देखेंगे। तो साइड में देखिए एक लिखा हुआ है CMY, वायलेट का ही दिखाओ, वायलेट का दिखाओ, हाँ वायलेट का दिखाओ। सो वायलेट कलर इज मेड विथ 71 C, C मतलब सैन, C कलर दिखा दो हरिबोल। ओ इधर मैं दिखा देता हूँ, आई आल्सो इन माई। अभी भीष्मा यू I'll stop share for. ओके ठीक है, यू कैन स्टॉप नाउ। CMYK में क्या होता है? CMYK में वी यूज थ्री कलर्स, C, M और Y, विच इज बेसिकली RGB। आरजीबी की तरह ही CMY यूज करके भी हम कलर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर है। तो स्यान, स्यान कलर है, येलो कलर है, मैजेंटा कलर है। ये तीन कलर से आपको भी सब कलर्स मिल जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा ब्लैक भी रहता है, ओके, के करके रहता है। CMY के स्कीम इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, RGB स्कीम इज यूज्ड फॉर ग्राफिक्स, मतलब आप अगर वेब मीडिया। सो दीज आर द टू थिंग्स, one is called the wave media and another is called the print media. तो अभी मैं इधर लिखता हूं, RGB is used for wave media। wave media मतलब, wave media मतलब if you want to make some poster or artwork for
वेबसाइट, टैबलेट, मतलब सॉरी मोबाइल्स, या फिर व्हाट्सएप में डिजिटल सर्कुलेशन के लिए वी यूज आरजीबी, बिकॉज हमारा जो मोबाइल्स वगैरह वगैरह है, हमारा जो सब कुछ आरजीबी फॉर्मेट में है. ओके, all our mobiles, all the digital circulations, our laptops, whatever screens we are seeing, all are in RGB scheme. And CMYK is the scheme where you use for print media. So for printing, तो अगर आप प्रिंट पोस्टर को प्रिंट करना चाहते हैं, उसका कलर स्कीम CMYK रखना है. अगर आप उस पोस्टर को डिजिटल सर्कुलेशन करना चाहते हैं, उसको आप आरजीबी करेंगे. यस तीर्था, गो अहेड. Prabhu, your screen is not shown. मतलब दिखाई नहीं दे My रहा। screen is shown. My screen is shown. It's visible ना screen? प्रभु जी फ्रीज हो गया स्क्रीन। Yes, sir. Yes, Prabhu, it's freezed. It got blurred, Prabhu ji. हाँ, अभी दिख रहा है. Yeah, now it's visible. Okay, so RGB is used for web media. So if you want to make some poster artwork for website, mobile, WhatsApp, digital circulations के लिए RGB is used. And CMYK is used for physical printing करने के लिए. Okay, कोई आपको बोलता है कि मेरे को पोस्टर बनाना, लेट्स से आप तो डिजाइन टीम में रहेंगे, कोई बोलेगा, तरुण प्रभु बोलेंगे कि पोस्टर बनाओ, तो आपको पहला पूछना है कि ये पोस्टर प्रिंट होगा या डिजिटली सर्कुलेट होगा. उससे आप डिसाइड करेंगे कि ये आरजीबी स्कीम रखना है या CMYK स्कीम रखना है. समझ में आया तरुण प्रभु? समझ में आया? यस प्रभु. ठीक है, वेब मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया. ओके, सो विद दिस मच इंफॉर्मेशन, वेक्टर एंड कलर स्कीम. ओके, कलर स्कीम का भी थोड़ा सा दिखा देंगे आपको, अभी बीच दिखा देगा CMYK और आरजीबी कैसे होता है. ओके, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि वो प्रिंटिंग में समझ में आता है. ओके भीष्मक, शेयर नाउ. ओके, ओपन दैट निताई गौरांगस पिक्चर in Photoshop. छोटा करो. So you see this picture is in RGB. ऊपर देखो, देखो एक लिखा हुआ है पिक्चर के साइड में, देख रहे हो RGB/8. Now what is this RGB/8? एक /8 है, मतलब हर पिक्सल को 8 बिट्स लेके स्टोर कर रहा है वो. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ आपको कितने को पता है बिट्स एंड बाइट्स? हरे कृष्णा. बिट्स, बाइट्स, 8 बिट. 8 बिट मतलब 1 बिट इज 1010. ठीक है, 8 बिट मतलब 1010 का एक बाइट बोलते हैं. उस एक पिक्सल इज टेकिंग 1 बाइट ऑफ डेटा. ओके, सो दैट इज सो इट इज इन आरजीबी. सो इसको हम CMYK भी कन्वर्ट कर सकते हैं. थोड़ा बड़ा करो पिक्चर को. हाँ, तो अभी हम इसको इसको अगर प्रिंट डिजिटली सर्कुलेट करना है तो आप इसको ऐसे ही सर्कुलेट कर सकते हैं, बट इसको अगर प्रिंट करना है, करो इमेज, इमेज, गो टू इमेज, 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 इमेज. हाँ, मैं चेंज करके देता हूँ और एक फाइल में CMYK सिलेक्ट करके. Ctrl+Z कर लेंगे ना, कुछ नहीं होगा. अच्छा, नहीं होगा. तो और एक बना देता हूँ, वो इजी होगा. ऐसे नहीं, उधर ही से चेंज करने से उनको समझ में आएगा. ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, छोड़ दो ना, उसी को बदलो ना. Ctrl+Z कर लेंगे, टेंशन मत लो. अच्छा, गो टू इमेज, इधर. हाँ, इमेज, एंड देन इधर देखिए मोड, Sorry. मोड, मोड, हाँ, मोड, चेंज कर देता हूँ bro. मोड, 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 Yeah. मोड. हाँ, तो इधर मोड में देखिए एक CMYK कर देंगे. अगर उसको CMYK सिलेक्ट कर देंगे, करो.
तो अभी ये CMYK है, आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बट प्रिंटिंग करते समय पता चलेगा, ठीक है। एंड इस CMYK मोड को अगर आप डिजिटली सर्कुलेट करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, फटा फटा, मतलब फटा फटा नहीं, थोड़ा फीका फीका लगता है। CMYK कलर स्कीम इज थोड़ा फीका, एंड RGB color scheme in mobiles is very bright. Okay, so generally mobile circulation, digital circulation में आप RGB रखिए, एंड फिजिकल प्रिंटिंग के लिए आप CMYK रखिए। ओके, नाउ इसको बंद कर दो, हो गया इसका काम। नाउ वी विल गो टू इलस्ट्रेटर, विल स्टार्ट आवर वर्क इन इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप का काम हो गया, फोटोशॉप बाद में जब सीखेंगे करेंगे। ओके ओके, सब बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, हाँ ये बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। ओके ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन सम। ओके, आपको RGB CMYK समझ में आया? तरुण, कैन यू मेक इट डू a little bit of 2 minutes revision about RGB CMYK? यस। सो RGB आर 3 प्राइमरी कलर्स, और उनको मिक्स करके कोई भी कलर बना सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है, Yes. RGB कलर्स का यूज करके हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक को प्रिंट करने के लिए R, G और B तीनों को 0 होना पड़ेगा। 0 होगा मतलब तीनों में से कोई कलर नहीं निकलेगा, तो एज सच कोई कलर प्रिंट ही नहीं होगा। तो ब्लैक कलर प्रिंट नहीं हो सकता RGB कलर स्कीम को यूज करके। Perfect. देयरफॉर देयर इज CMYK फॉर्मेट Yes. जिसमें सियान, मैजेंटा, येलो कलर है। इन तीनों कलर को भी मिक्स करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। K इज फॉर स्पेशली प्रिंटिंग ब्लैक कलर, तो एक ये फॉर्मेट है जो प्रिंटिंग में हम यूज करते हैं। Yes. अगर हमको वेब मीडिया बनाना है, डिजिटल Perfect. फाइल्स बनानी है, तो RGB यूज करना है। प्रिंटिंग में कुछ करना है, हार्ड कॉपी बनानी है, तो CMYK यूज करना Perfect. You are very good student. आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। Okay, next. So now we will start our actual course. Okay, this was a little bit of theory. So how we will go ahead is that we will teach you something little bit, and we'll give you some assignment videos from the Udemy. So you can log in our Udemy through our info.dasosmevo that Tarun will share, and from that all of you can go through the course, and then we'll give you some assignments based on the course next week. Like इस week में आपको देखने के लिए देंगे वीडियो, फिर नेक्स्ट वीक वो चेक करेंगे, आपका कुछ डाउट्स है वीडियो से उसको पहले 15 मिनट में चेक करेंगे, आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे और कुछ हम खुद भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह यू विल डू, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज रिटन हियर, क्रिएटिविटी इज एन आर्ट, जैसे एक साधना होता है। अब जितना आप हर दिन थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करेंगे, आपको लगेगा मैं एक दिन बैठ के 3 घंटा करूंगा, मत कीजिए ऐसा। हर दिन बैठ के आधा घंटा कीजिए। एक हफ्ते में अगर आप मान लीजिए आप डिजाइन सर्विस करना चाहते हैं 3.5 घंटा 4 घंटा, तो आप हर दिन में उसको डिवाइड कीजिए, हर दिन 15 मिनट थोड़ा कीजिए, देखेंगे आपका हाथ बैठेगा। आपका हाथ माउस में बैठना है, माउस इज मैंडेटरी, ठीक है। बिना माउस का डिजाइन होगा नहीं। So you need to have a mouse, like I have my Apple mouse. So you have to have a mouse. Tarun will help you installing all the softwares this week. You need to have an internet. You have to join the WhatsApp group, and you have to purchase a mouse. And best is to do 15-20 minutes of daily work. थोड़ा हाथ चलाते रहेंगे हर दिन, तो आपका हाथ बैठेगा। Okay? Is this clear? जैसे करताल, when we are playing करताल, so my करताल. So करताल is like a skill, it's an art. So when I am taking the करताल, so if I think that मैं 1 घंटा पूरा हफ्ते में 1 घंटा एक साथ बैठ के करताल बजाऊंगा तो होगा नहीं। बट मैं अगर हर दिन 5 मिनट बजाऊंगा तो इट विल स्टार्ट, बिकॉज हाथ बैठना है। Similarly हारमोनियम, similarly synthesizer, similarly violin, all these are art. So आपका हाथ बैठना पड़ेगा। So डिजाइन में हाथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। Okay, now we will start our course. So first we will see today 2 things. I don't know how much we can go till 5 o'clock में कितना होगा। Making the paper ready for the artwork,
and we will see objects and the selection tools. Okay, these are the two things we will see. Okay, so Bhishma, so now you can open Illustrator. Yes, bro. So first section we are starting in Illustrator is making the paper ready. Just keep it, hold on. Okay, so making the paper ready. So now this is your Illustrator. बंद कर दो Illustrator. Just minimize. Okay, so open the Illustrator. Oh, राई क्या बोल रही है? Oh, nothing, bro. Sorry. Has a beautiful, cute, and very nice little naughty sister called Rai. And I love her so much. Small girl. Yes, Bisma. Yes, bro. I'm coming Mayapur, Bisma. I'll bring some gifts for Rai. Okay, so this is called the entire software. जब खोलेंगे आप ऐसे दिखता है, ठीक है। ऊपर देखिए कुछ कुछ वो है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। ये हम एक एक करके आपको सिखाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा, जो जो चीजें जरूरत पड़ेगा वो करेंगे। तो दिस इज द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ द इलस्ट्रेटर। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इलस्ट्रेटर 2019। Yes, bro. This is 2019. The latest one is 2025. Okay, so we are not that list. 2019 is sufficient. So this is 2019 Illustrator, 6 years before Illustrator software. This is sufficient for all of you to work on. So now we will first create a file or page जिससे हम जिससे हम करेंगे काम। Now काम चालू करने से पहले जो भी आपको काम दे रहा है तो उससे आपको पूछना है कि ये पेपर का साइज क्या है, क्योंकि इलस्ट्रेटर मतलब बेसिकली वी आर डूइंग प्रिंटिंग और सम साइज, राइट। अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ क्रिएट न्यू। तो इधर क्रिएट न्यू या फिर फाइल में जाके न्यू करो। इसमें फाइल में जाओ, फाइल में दिखाओ। सो देखिए इधर फाइल में जाके ये पूरा आ जाता है और एक न्यू आ जाता है। तो इसको न्यू दबाइए, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है कि क्या आप साइज दे सकते हैं। देखिए साइड में विड्थ है, आप 1920 बाई 1180 पिक्सल्स में कर सकते हैं, या फिर पिक्सल्स को इंच कर दो, इंच में लगा सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर में लगा सकते हैं, मिलीमीटर में लगा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम 12 बाई 10, 12 बाई 18, 12 इंच और 18 इंच। और देखिए और एक साइड में लिखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब विड्थ, पोर्ट्रेट या फिर एक है पोर्ट्रेट मोड या फिर लैंडस्केप, दोनों मोड है। एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। समझ में आ रहा है? पोर्ट्रेट मतलब लंबा होकर दिखेगा, लैंडस्केप मतलब ऐसे लंबा होकर दिखेगा, हॉराइजेंटली लंबा होकर दिखेगा। तो दिस इज 18 इंच विड्थ होगा एंड हाइट 12 होगा। और उसको अगर पोर्ट्रेट कर देंगे, करो, तो उल्टा हो जाएगा, 12 इंच विड्थ हो जाएगा, हाइट 18 हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? यस प्रभु। हाँ, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब है, जनरली मोबाइल्स पोर्ट्रेट होता है और लैपटॉप स्क्रीन लैंडस्केप होता है। अभी समझ में आया? मोबाइल स्क्रीन पोर्ट्रेट है, लैपटॉप स्क्रीन लैंडस्केप है। तो आप अगर लैपटॉप में सेव करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? लैंडस्केप। लैपटॉप में लैंडस्केप। अगर पोस्टर आप मोबाइल के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे?
portrait. परफेक्ट परफेक्ट। तो साइड में देखिए कुछ लिखा हुआ है कॉल्ड आर्ट बोर्ड, वो हम बाद में देखेंगे क्या है होता है ये आर्ट बोर्ड। ठीक है, उसमें उसको अभी एक में रखो। ये ऊपर ब्लीड है, ब्लीड हम बाद में सीखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो एंड नाम दे सकते हैं आप, नाम दे दो कुछ। डोंट गिव निताय गौरांगा। डिजाइन इंट्रो 1, 1 नंबर 1। या नाउ इधर एक देखिए, नहीं 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 डोंट क्रिएट। एडवांस्ड ऑप्शंस में जाएंगे हम, आरजीबी और एडवांस ऑप्शन खोलो। उधर नहीं, इस ये सब छोड़ दो, ये नहीं तो हाँ इसको, हाँ। तो देखिए इधर हम ये मांग रहा है आप आरजी में भी बनाना चाहते हैं या सीएमवाई के में बनाना चाहते हैं। तो आप इधर सीएमवाई के सिलेक्ट कर सकते हैं या आरजीबी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वेब चाहिए तो आरजीबी, आपको प्रिंट चाहिए तो सीएमवाई के। सो नाउ विल गो फॉर सीएमवाई के राइट नाउ। ओके, एंड देन आपको जनरल ये रेजोल्यूशन को 300 में रखना है हर समय। ठीक है, 300 पीपीआई मतलब 300 पॉइंट्स पर इंच। ओके, पीपीआई मतलब जैसे पिक्सल पर इंच, पीपीआई बेसिकली पिक्सल पर इंच, कितना पिक्सल पर इंच में, तो वो 300 है। ठीक है, हर समय उसको हाई में रखना चाहिए तो उसका हाई रेजोल्यूशन बनेगा। ओके, so then we can in this way we can create। ओके, तो ये बन गया देखिए, पोर्ट्रेट में था तो पोर्ट्रेट, अभी लैंडस्केप में बना के देखो, एक एग्जांपल दो तो लैंडस्केप। इसको अगर लैंडस्केप कर दिया सेम साइज का, डिजाइन इंट्रो 2। तो सेम सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बन गया, समझ में आया, ये लैंडस्केप हो गया। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम ऑलरेडी स्टैंडर्ड पेपर साइज। हाउ मेनी ऑफ यू नो A4 पेपर? A4 पेपर जो Yes, प्रिंट होता yes, है, Prabhu. सो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए प्रिंट में जाके इधर देखिए, लेटर A4 ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। मान लीजिए आपको A4 करना है तो वो A4 दबाएंगे तो क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली A4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी है, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड पेपर साइज, वो भी देता है। सो आप फाइल में जाइए, रिन्यू कीजिए। सो इसमें इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, देखिए प्रिंट, मोबाइल, मोबाइल का भी देता है, आईफोन के लिए बना सकते हैं, आईपैड के लिए बना सकते हैं। तो जो भी जिसके लिए जरूरत है तो वह बना सकते हैं। प्रिंट वेब में आपको किस तरह का पिक्सल चाहिए, सो बहुत सारा ऑप्शंस। इसको बोलते हैं प्रीसेट, मतलब ये प्रीसेट होके हुआ है। एक तो आप खुद से डाल सकते हैं, ये आपको खुद बेसिकली जो स्टैंडर्ड काम होता है उससे प्रीसेट दे दिया, उसको करके आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, एंड प्रिंट, प्रिंट में भी प्रीसेट है, A4 साइज, A3 साइज, A5 साइज, तो ये सब है, B5 साइज, वो सब। ओके ओके, कैन क्लोज। Okay, anyone has any doubt on how to create the page? Okay, so now this is one page is created which we have 12 inches by 8 inches, 18 inches. ये 18 इंच का है और ये 12 इंच का है, हमने बना दिया। Now there is something called which is very important that we have to know, that is called artboard. Okay, so Bhishma, show them artboard। इसे साइड में लिखिए। नहीं नहीं नहीं, डोंट। सो साइड में देखिए यूनिट्स करके लिखा हुआ है इंचेस, और साइड में लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड। सो इसमें अगर आर्ट बोर्ड को मैं 2 कर दूंगा, ओके, सो ये ऑलरेडी 1 है। सो ये देखिए, ये आर्ट बोर्ड मतलब कि कितना आपको एक फाइल में कितना 12 by 18 पेज है, समझ में आ रहा है? आर्ट बोर्ड का मतलब है
कि आपने देखा है कभी आर्टिस्ट लोग कैसे बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड लगाएगा, नोटिस बोर्ड पकड़ लो, ठीक है, नोटिस बोर्ड पकड़ लो, ठीक है, मान हाँ, लीजिए जैसे नोटिस बोर्ड, कैनवास प्रभु जी। कैनवास, कैनवास, नोटिस बोर्ड, मान आप कैनवास भूल जाए, नोटिस बोर्ड सोच लीजिए, नोटिस बोर्ड में 4 ठो A4 पेज लगा दिया। सो दिस इज बेसिकली द एंटायर थिंग विल बिकम ए नोटिस बोर्ड एंड आर्टबोर्ड कॉपी करो। हाँ, तो जब जितना आर्टबोर्ड कॉपी करेंगे तो उतना आर्टबोर्ड बनते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब अभी हम 3 12 बाय 18 पेज हो गया, एंड फिर 3 पेज करके हम एक फाइल में 3 चीज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कुछ बना रहे हैं जिसमें क्या होगा कि उसमें 4 पेज है, तो क्या 4 फाइल बनाएंगे उसके लिए? तो आप क्या करेंगे, एक फाइल में 4 पेज बना दीजिए। ये फायदा है। जिस तरह वर्ड में होता है ना, वर्ड में पेज बनता है ना अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल ये, जस्ट लाइक डुप्लीकेटिंग हाँ, पेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा वर्ड है, ठीक है, ये पहला पेज में इतना मैंने लिखा, ये A4 पेज है। अभी ये हो गया सेकंड पेज, ये भी A4 है। तो एक फाइल में अलग अलग पेजेस, बहुत सारा पेजेस हो गया। तो उसी तरह आर्टबोर्ड इज बेसिकली ए पेज, एंड एक फाइल में आप बहुत सारा पेज बना सकते हैं और बहुत सारे पेज के ऊपर आप आर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इट्स बेसिकली आपका फाइल एक आर्ट बुक की तरह बन गया। तरुण, क्या समझ में आया आर्ट बोर्ड के बारे में? तो बेसिकली अगर मान लीजिए 2 डिजाइन बनाने हैं, तो एक वन ऑप्शन हाँ इज 2 फाइल बनाए उसके अलग अलग। सेकंड ऑप्शन इज हाँ एक ही फाइल में हम 2 पेज बनाकर उसमें एक ही फाइल में डिजाइन कर सकते हैं दोनों पेज। सो दैट हाँ, पेज इज आर आर्ट। या द पेजेस आर आर्ट बोर्ड। समझ में आ रहा है? किसको कुछ डाउट है आर्ट बोर्ड के बारे में? Hare Krishna Prabhuji. हाँ, The picture will be same in all the pages, means all the artworks, नहीं तो but the editing वी will be कैन different. चेंज द साइज ऑफ आर्ट बोर्ड्स आल्सो इन ए फाइल। अभी ये 12 18 किया, और हम देखेंगे अभी आर्ट बोर्ड कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे। आप आर्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया, फिर आर्ट बोर्ड हम सिखाएंगे कैसे करना है। ओके, ठीक है। नाउ भीष्मा, सब कुछ एक एक करके दिखाओ। आर्ट बोर्ड कैसे डुप्लीकेट करना है, आर्ट बोर्ड का साइज कैसे बदलना है। ठीक है, सब डिलीट कर दो। ओके, तो पहले हमने क्या किया, फाइल 12 18 का एक फाइल बनाया, फिर थोड़ा बड़ा कर दो, जूम आउट, हाँ, और सेंटर में ले लो, यस। सो ये जो फाइल हमने बनाया, ये 12 इंच बाय 18 इंच, ऊपर लिख लो 12 इंच बाय 18 इंच। या, ठीक है। तो नाउ अभी हम सेकेंड आर्टबोर्ड बनाएंगे, ठीक है, यस। तो नाउ आप इधर एक ऑप्शन है, देखो इधर भी एक ऑप्शन है, विच इज कॉल्ड आर्ट बोर्ड टूल, दिख रहा है आपको छोटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। एक्चुअली उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, मे भी सॉफ्टवेयर रहेगा तो वो लैपटॉप में खुद देख पाएंगे हम जो करेंगे। क्या बोलते हो तरुण? करेक्ट, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। यस यस, आज थोड़ा बेसिक बेसिक कर देते हैं 2 3 चीजें, फिर उसके बाद नेक्स्ट में ज्यादा But I डिटेल। think we should end here now then, because let them install the software, because generally हम कैसे करेंगे, भीष्म इधर दिखाएगा और आप अपना लैपटॉप में सेम चीज को सॉफ्टवेयर में करने का कोशिश करो, ठीक है, एंड आप फिर स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ हमको कि कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, देन विल गो हेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू गो? आपके साथ लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर रहेगा, हम इधर कुछ दिखाएंगे भीष्मा, सेम चीज आप उधर करिए। इफ यू आर एबल टू गेट फाइंड सम डिफिकल्टी, देन यू टेल कि प्रभु जी नहीं हो रहा है, फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिए, हम बताएंगे कि कहां पे आपका गलती हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि इफ सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर, आई थिंक देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी, यस। बिकॉज बता के भी कुछ नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीक हम ऑब्जेक्ट्स एंड सीखेंगे। तब तक हम आपको कुछ वीडियोस देंगे जिसको आपको देखना है, ठीक है,
एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। कब तक आप तरुण प्रभु, बाय टुमारो यू विल बी एबल टू इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर? केवल इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करना है और कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, कल और तक मे हो भी जाएगा। इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप दोनों ही कर लो। हाँ, हाँ, दोनों ही हो जाएगा, एक बार सिस्टम लेंगे तो फिर दोनों हो जाएगा एक बार में। तो 2019 है भीष्म तुम्हारे पास? है हमारा जो 2019 वही वाला है तुम्हारे पास? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं अलग से डाउनलोड किया था। मेरे ओके पास सो है प्रभु 20। अच्छा, ओके तरुण प्रभु के पास है तो वो वाला शेयर कर सकते हैं ड्राइव में। तो बट 20 का लुक्स फील सेम है ना, चेंज नहीं है ना? ऑलमोस्ट सेम, कुछ कुछ मैं चीजें शायद अपडेट हुआ है। मैं दिखा देता हूँ। हाँ टू टू दिखाओ। सेम प्रभु जी। ओके सो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। उसको बंद करो, टैब को बंद करो। Looks same, nothing. So by tomorrow everything will be installed. यस प्रभु। Okay. So so what do we do? So after maybe next week, I'll give you have already made the WhatsApp group. यस। तो info.dasosmi Udemy का सबको पासवर्ड दे दो। They can in their own time. I will send in the group. Maybe मेरे को भी घुसना पड़ेगा ग्रुप में so that it is easier for handling ना, correct? Because I will send some articles and something कुछ पढ़ने का, तो so that sounds good. Anyone has any more suggestions? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। बोल रहे प्रभु जी कि मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है मेरे पास। हाँ चलेगा, लैपटॉप ठीक है। कंप्यूटर जो भी है आप चलेगा। बस कंप्यूटर में अगर कैमरा नहीं है तो आपका कैमरा नहीं रहेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे भीष्म के पास डेस्कटॉप है। और किसी का कुछ डाउट्स? but you have to join with your laptop or desktop only so that आप और माउस, everyone please purchase mouse, बिना माउस का होगा नहीं। okay, is this clear? Sounds good. So next week, how many of you have laptop में already installed Illustrator and Photoshop? okay, था सुनिए। Because I have Photoshop only. okay, तो Illustrator कौन सा वर्जन Photoshop का? That I know. प्रभु जी 2 साल पहले यूज किया था अभी। नहीं नहीं, कौन सा वर्जन? ठीक, याद नहीं प्रभु जी। Okay. Like, So there is one more thing you need to also see, that is about system requirement. Yes, Tarun Prabhu, share your system requirement. For if you go to your Windows, you will see certain things called system requirements, and उसमें system में लिखा रहेगा 8 GB RAM and all those things. तो थोड़ा सा RAM आपका ज्यादा रहेगा तो चलेगा, नहीं तो थोड़ा अटक जाएगा। तो just see that your RAM is good and everything. Okay. So this is it's not showing Tarun. Yeah. So this is Tarun Prabhu's. Go to the desktop, close everything, close Explorer, and close Explorer. नहीं, अरे you close the share only. Yeah. It's not coming. स्क्रीन इज कमिंग। Yeah. So the system आपका जो system का वो है. So those who are using Windows 11, okay. कहाँ से निकाल रहा है? एक्चुअली इधर इधर पीसी right click, properties, yeah. Yeah. So if you go to my PC, if you are using a window, right click and go to properties, it will show the about the system. इसमें देखिए 16 GB का RAM है and Windows 11 है and i5 है। तो सबका बता दीजिए क्या क्या सिस्टम है आप सबके पास। यस तीर्था, व्हाट सिस्टम यू हैव? गो एंड ओपन योर सिस्टम एंड टेल अस व्हाट यू हैव।
यस बाकी प्रभु। खोलिए क्या क्या सबके पास है। ये श्रुति, आपके पास क्या सिस्टम है? यस प्रभु जी। Bhishma, you can leave now if you want. Prabhuji, I have 8 GB RAM and i5. Very good. So that's good enough. 8 GB RAM and which generation? Uh, Which gen? Chip. इसको बोलते हैं चिप। कर तरुण दिखाओ ना, उसको अनशेयर क्यों किया? तरुण, why do you do like this? Don't unfair how people प्रभु जी मेरे पास 11th जनरेशन प्रोसेसर है एंड 8 GB इंस्टॉल रैम। And i5 i3 क्या है? ये सब हाँ देखो इधर लिखा हुआ है, ये तो प्रोसेसर। i5। हाँ i5। वेरी गुड, इट्स गुड एनफ, गुड एनफ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ 8 GB रैम है, 11th जेन एंड i3। i3। हाँ ठीक है, चलेगा। 8 GB है तो चलेगा। और फिर प्रभु जी आई हैव 8 GB रैम एंड आई हैव Ryzen 5 प्रोसेस। ओके, Ryzen 5 इज आल्सो फाइन। व्हाट इज क्लॉक स्पीड? देखिए साइड में क्लॉक स्पीड रहता है 2.5 गीगाहर्ट्ज। 2.30। हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एंड और कौन है इधर? हाँ सर, वो प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्लीज टेल। हाँ, मेरा 4 GB रैम है हाँ और i5 है। i5 और 4 GB रैम, ओके ठीक है। अगर आपका दिक्कत होता है, थोड़ा सा अटकता है, तो मे भी एक रैम अपडेट करना पड़ेगा, वो जो 1200 1300 1500 रुपये लगेगा, ठीक है। हाँ, और कौन सा जनरेशन है? मेरा इसमें जीबी है 256। नहीं 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 नहीं, 11 जन, ये प्रोसेसर, ये स्क्रीन आपने खोला है आपके लैपटॉप का? ये सिस्टम अबाउट ये सब लिखा है। प्रभु जी वो देख के बताती हूँ मैं। थिंक ये मुझे Okay. समझ नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ। एक सेकंड में बाद में आपको Okay, कंफर्म जैनी माता जी आपका सिस्टम? सिस्टम। जैनी माता जी आपका सिस्टम का क्या है? अनम्यूट। सुनीता वाली माता जी आपका? प्रभु जी मेरा इंटेल i7 है और 16 GB रैम। ओके, सफिशिएंट ओके। संगीनी ललिता, व्हाट इज सिस्टम आपका क्या? जी 16 GB रैम है, 12 जनरेशन। 12 जनरेशन एंड i5 i3? i5। i5 ओके। संगीनी श्री ललिता? या हरे कृष्ण प्रभु, मेरा डेल का है 13 जनरेशन i5 एंड 8 GB। Okay, good. Everyone has good laptop. No problem. Only I think Rajni Mataji has to little bit check and get back to Tarun Prabhu. Okay, sounds good. So Tarun, I think easily they can install. They have a very good things. Okay. Yes, okay. So I will send in the WhatsApp group. Tarun will join me, and I'll send the Udemy links. What you have to do. And I'll send some YouTube videos also which will help you understand. उसको आपको देखना है and आपके लैपटॉप में एक्सपेरिमेंट करना है। Next week we will again continue. Okay? Is this clear? Any suggestions for improving the course? So Shruti and Tarun will make the hand notes ready and share in the WhatsApp group. Okay, make good notes like I have made like this, like put like this, like okay, design training session, module 1 we will be learning Illustrator, module 2 will be learning Photoshop. So ऐसे ऊपर ऐसे दे दीजिए, session 1 introduction and then the hand notes and everything. Okay, is this clear? Okay, sounds good. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। It's like little bit odd. What did you learn today from Prabhuji? Illustrator. Okay, but I hope and pray that you all learn very nicely and so that I don't have to teach further. Okay, yes Tarun?
यस यस I'm बिल्कुल teaching you so that you will teach others and I don't have to teach. ठीक Okay, है। ठीक है कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे